Okay students, today we are talking about the green plastids जिनको हम बोलते हैं chloroplast, and we all know this is the site for photosynthesis. This is the site of photosynthesis. यहाँ पे ही photosynthesis होती है और इन्हीं को हम बोलते हैं the green plastids. Because plastids बहुत प्रकार की होती हैं, but जो green plastids है जहाँ पे photosynthesis होती है, these are known as the chloroplast. Now first and foremost, what is the size of the chloroplast? Who discovered chloroplast? So discovery का जहाँ तक सवाल है, these were discovered by, the discovery was done by Anton von Leeuwenhoek. So this was the guy जिसने इनको डिस्कवर किया था, and इनका जो साइज होता है, the size of the chloroplast, it's a donut shaped होती हैं ये, और इनका साइज होता है 4x10 माइक्रोमीटर इन द लॉन्ग, सॉरी माइक्रोमीटर नॉट मिलीमीटर, माइक्रोमीटर इन द लॉन्ग एक्सेस. यानी कि अगर इस तरह से है क्लोरोप्लास्ट, राइट, तो ये जो है ये 10 होगा, ठीक है जी, 10 माइक्रोमीटर, और ये होगा आपका 4 माइक्रोमीटर. तो इसको बोलते हैं इन द लॉन्ग एक्सेस 4x10. सो वैसे तो क्लोरोप्लास्ट सभी प्लांट्स में और काफी सारे ग्रीन एल्गीज में पाई जाती है, ऑलमोस्ट सभी ग्रीन एल्गीज में पाई जाती है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये एब्सेंट होती हैं. तो ये एब्सेंट कहां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. सो एब्सेंट होती हैं ये प्रोकैरियोट्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर भी ये एब्सेंट होती हैं. साथ में ये एब्सेंट होती है मैनी प्रोटिस्ट, नॉट ऑल, मैनी प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट एंड फंजाई. और उसके अलावा दे आर एब्सेंट इन ऑल्सो एनिमल्स, हायर एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती हैं, एंड दे आर ओनली फाउंड इन, मोस्ट ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन योर ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, ग्रीन एल्गी स्पेशली. सो अब हम एक बात कर लेते हैं कि व्हाट इज देयर नंबर्स. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं, सो व्हाट आर द नंबर्स एंड व्हाट आर द शेप्स एंड साइजेस. तो शेप्स इनकी बड़ी, you know, they can be horseshoe shaped, different shapes are there. They can be cylindrical, horseshoe shaped, and different kinds of donut shaped. So these are common shapes. But अगर हम numbers की बात करते हैं, number of chloroplast, तो ये काफी वेरी करता है. So chloroplast number can be as good as from 1 per cell. एक सेल में एक. Very good example of such kind is your Ulothrix. These are the green algae and Chlamydomonas. Monas. And अगर हम बात करें, they can be multiple. So example, अगर हम plant cells की बात करते हैं, so they can grow from 20 to 50 per cell. Or the cell we are talking about are the parenchymal cells. So they can go from 20 to 50, and these example of in plants, in green plants, this is the number. Generally the chloroplast can vary. और इसके अलावा they can go up to as high as 500. Like the internodal cells जो होते हैं, internodal cells of Chara, this is a algae. So internodal cells of Chara can have the chloroplast number as high as 500 per cell, which is phenomenal, which is huge. So आपने देखा chloroplast का नंबर काफी वेरी करता है cell to cell. Some of the cells can have low, some can have very high number of chloroplast. But another very important thing about chloroplast is कि अगर आप देखें, this organelle has got a semi-autonomous origin. Semi-autonomous का मतलब होता है, okay, let's write down first. So it has got a semi-autonomous organelle, and this has got an endosymbiotic origin. Endosymbiotic origin. So semi-autonomous means इसके पास क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है,
and they have got every machinery which is required for the formation of the own proteins. So some of the proteins, around 5 to 10% of the total proteins semi-autonomous में they are coded by the genome of the organelle itself. Another example जहां हमने ये पढ़ा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वहीं पे ये टर्म्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं. यू कैन लुक अप इन द आई बटन ऑफ द वीडियोस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड यू कैन चेक बैक ऑन them because we have already stated what are endosymbiotic origin and what are semi-autonomous organelle. So let's move on from here. So we have the structure of chloroplast. मैंने आपको बताया था typically these are double membrane organelles. दो इनमें membrane होती है, एक outer membrane होती है और एक उसके अंदर inner membrane होती है. So you can see there are two membranes here, outer and inner. So इसको जरा मार्क कर लेते हैं. Let's mark it up. So you have the outer membrane जिसको हम लिख रहे हैं outer membrane OM, and you have the inner membrane. And यहां पे होता है this space we have the stroma. So चलिए पहले इसको define कर लेते हैं. Stroma is there. This is known as the stroma. So typical जो हमने लिखा है पहले उसकी बात करते चलते हैं. स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है साइज, हमने बताया था 4x10 in the long axis. So you have the outer membrane. First and foremost there is an outer membrane. Now the outer membrane की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि these are highly porous, highly permeable and it is smooth. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मूथ होता है, रफ नहीं होता. आउटर मेम्ब्रेन दिस इज स्मूथ एंड हाईली पोरस बिकॉज यहां पे आउटर मेम्ब्रेन में देयर आर प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोरिन्स द आउटर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज स्मूथ एंड इट इज हाईली परमिएबल. द सेकेंड इज you have inner membrane. Now inner membrane is just like any typical membrane. It is semi permeable and again it is smooth. Now ये स्मूथ यहां पे लिखने का हमारा टर्म क्या है, वाई वी राइटिंग स्मूथ, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप देखेंगे इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फोल्ड्स कॉल्ड द क्रिस्टे, बट यहां पे ऐसे कोई फोल्ड्स नहीं होते, यू कैन सी. सो यू कॉल दिस स्मूथ. देन द थर्ड पॉइंट इज द स्ट्रोमा. एज यू कैन सी स्ट्रोमा इज द प्लेस, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. मैट्रिक्स जो होती है ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. So matrix of the chloroplast is called the stroma and you can see इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. You have got ribosomes, you have got DNA, you have got RNA, you have got pigments, you have got enzymes, everything is there. So you have got enzymes and intermediates, so everything is there. But एक जो सबसे समझने वाली बात है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर there are certain कंपार्टमेंट्स. एक थर्ड कंपार्टमेंट भी होता है जिनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड कंपार्टमेंट एंड दी स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड आर रेफर्ड टू एज द ग्राना. सो ये हमेशा मेम्ब्रेन से, आपकी इनर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. दीज आर कनेक्टेड टू द इनर मेम्ब्रेन. सो दीज इंडिविजुअल, दीज फ्लैटेंड सैक्स. सो फोर्थ इज यू हैव दीज थैलाकॉइड्स. Thylakoids. These thylakoids are flattened ovoid spaces and इनका अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं. They have got their membrane, very important. इनमें एक membrane होती है. So ये जो एक इंडिविजुअल है इसको हम थैलाकॉइड बोलते हैं, बट अगर ये ग्रुप में होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रानम. सिंगुलर को ग्रानम, सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो उसको बोलते हैं ग्राना. ग्राना मींस
Plural. So a typical chloroplast can have as much as 50 to 100 grana inside it. 50 से 100 ग्राना तक हो सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये हमेशा जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं और आपस में भी कनेक्शंस होते हैं इनके. सो दे आर हैविंग कनेक्शंस बिटवीन देम आल्सो, और ये जो कनेक्शंस होते हैं इन कनेक्शंस को हम बोलते हैं फ्रेट चैनल्स या फिर granule thylakoids. These are known as granathylakoids or Fret channels. Sorry, these are known as Fret channels or stroma thylakoids. And these thylakoids के अंदर एक और स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. ल्यूमेन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए, आपके पिगमेंट्स हो गई, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेम्ब्रेन. यहां पे आपका क्लोरोप्लास्ट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स. सो यहां पे और आपके फ्रेट चैनल्स में द क्लोरोप्लास्ट इज देयर. इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं थाइलाकॉइड को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार इसको रिपीट करते हैं बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द फंक्शन. सबसे पहले दिस इज द होल ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट. ठीक है जी. उसके अंदर ये इंडिविजुअल फ्लैट एंड ओवाइड सैक्स जो हमें दिख रहे हैं इसको बोलते हैं थैलाकॉइड. और जब इनके ऊपर ये बोरी के एक पूरे गुच्छे के जैसे हो जाते हैं, स्टैक के जैसे हो जाते हैं, उसको इंडिविजुअल बोला जाता है ग्रैनम. और जब ये बहुत सारे होते हैं सो उसको बोलते हैं, प्लूरल में बोलते हैं उसको ग्रैना. और ग्रैना कैन बी एज बिग एज 50 to 100 ग्रैना इन अ क्लोरोप्लास्ट कैन बी देयर. स्टैक्स हो सकते हैं. और ये जो ग्रैना होते हैं, ये ग्रैना के अंदर जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो कुछ ऐसा दिखते हैं. उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है और एक ल्यूमेन होता है. मेम्ब्रेन में आपकी पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम 1 and 2. एंड वो फोटोसिस्टम 1 यहां पे ही नहीं होती, इवन ये जो इंटरकनेक्शंस हैं जिनको हम फ्रेट चैनल्स और स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, सो इन स्ट्रोमा लैमेली में भी होती है. सो दिस इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा लैमेली. फ्रेट चैनल्स और दी स्ट्रोमा लैमेली यहां पे भी होती है. सो आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, CO2 कंजम्पशन. सो CO2 का सिंक माने जाते हैं ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे कंज्यूम CO2 एंड दे लिबरेट ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट दोनों फंक्शन है. ऑक्सीजन लिबरेशन ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन डू, और CO2 कंजम्पशन. CO2 का सिंक माने जाने, सिंक मतलब जो कंज्यूम कर लेते हैं, तो CO2 को कंज्यूम करके ऑक्सीजन देते हैं. तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए. उसके अलावा आपका थर्ड फंक्शन क्या है, दे ऑल्सो स्टोर योर the storage of your carbohydrates in the form of starch happens during the day. So जैसे जैसे बनता है it is stored as starch. In the night that starch moves on to other places. So storage of carbohydrates during the day, जो carbohydrates synthesize होते हैं during photosynthesis in the day. And fourth, they also produce, chloroplast produce a lot of organic acid. बहुत सारे आपके pyruvic acid, malonic acids, बहुत सारे acids produce होते हैं यहाँ पे. So they produce, organic acids are produced. Organic acids are produced in the chloroplast. So lot of organic acids are produced in the chloroplast. Very very important function which is there, which is performed by the chloroplast, is that they ट्रांसफॉर्म इनटू योर क्रोमोप्लास्ट. सो जो क्लोरोप्लास्ट होती है विद टाइम वो बना देती है क्रोमोप्लास्ट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ, जैसे फ्रूट्स और फ्लावर्स में द क्लोरोप्लास्ट बिकम्स योर क्रोमोप्लास्ट, और वो हेल्प करती है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स. राइट, इंसेक्ट्स एंड द एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन. सो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म into colored chromoplast for attraction of insects, for attraction of agencies for pollination, for the purpose of pollination.
and there is also lipid. These are also involved in your process of lipid metabolism. So this is another very important function of your chloroplast. So these are the main functions which are performed by your chloroplast. So I think that's it. Thank you. Thank you for watching. Please like, subscribe and share, and write us back at genesisacademydelhi@gmail.com. Thank you.